Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we will start our poem number 8, that is Ozymandias, written by P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. Now, P.B. Shelley is one of the very renowned poets of English poetry or English literature. He belonged to the Romantic era, and his poetry was actually full of revolutionary zeal. Now, coming to this very poem, Ozymandias, this poem actually asserts the mortality and the vain pride of kings and the rulers. Now, let me tell you something about the context of the poem. This very poem is actually written by two poets. Not this poem, rather, there are two poems which have the same title and the same theme. One is written by P.B. Shelley, the other is written by Horace Smith. Horace Smith was also a poet. So P.B. Shelley wrote after his friend Horace Smith, and he took the same topic, he gave the same title to the poem. Now, what and who was Ozymandias? Ozymandias is basically a Greek version or a Greek name for a Egyptian pharaoh. Now, do you know what Egyptian pharaohs are? You must have read or heard the name Pharaoh. मिस्र के जो बादशाह होते थे, द किंग्स ऑफ द इजिप्ट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज फिरौन. मिस्र के जो बादशाह होते थे उन्हें हम फिरौन वो फिरौन कहलाए जाते थे. और जो ओzymandias है वो फिरौन का आप क्या कह सकते हैं, उसका इजिप्शियन नाम है. ठीक है. और वो कौन सा फिरौन है जिसका नाम ओzymandias है या जिसका इजिप्शियन वर्जन ओzymandias है? This is actually Ramesses II. Ramesses II was the king of Egypt, and what happened? British Museum declared that they got hold on the statue, a kind of torn statue, debris of a statue of Ozymandias or the Ramesses II. ब्रिटिश म्यूज़ियम ने ऐसा कहा कि हमारे पास जो है या हमें मिल गया है, क्या मिल गया, रमेसीस II का एक टूटा हुआ मुजस्मा मिल गया. और उस टूटे हुए मुजस्मे में क्या था? सिर्फ उसका अपर टॉर्सो था. ठीक है. लेट मी सी इफ आई कुड शो यू द face or the picture of that very statue. Let me Google it and then I'll show you. See, this was the statue which British Museum claimed that they got it, and later on it was also taken to Thebes by the number of other peoples or the rulers of that point of time or the intruders. So ये वो मुजस्मा है किसका? रमेसीस II का. तो जब ब्रिटिश म्यूजियम ने ये न्यूज़ दी कि उन्हें मिल गया है जनाब ये मुजस्मा, तो फिर पी.बी. शैले जो थे वो बहुत इंस्पायर हुए इस न्यूज़ से, और इस मुजस्मे की हालत देख के वो बहुत ज़्यादा what you could say, वो he got so motivated, so he wrote this very poem Ozymandias. And in this very poem he is actually lamenting the mortality and the short period of the life of pride and of kings and of rulers. Okay, so let's start the poem line by line. I'll read it and then we'll discuss the structure, and then I'll read it and I'll explain it. Let me read it first thoroughly. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that it's a sculptor well those passion red, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them, and the heart that fed. And on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, yet mighty and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch away.
Now this very beautiful poem is actually a sonnet. Now the form I am talking about, इस पोएम की फॉर्म क्या है? ये एक सोनेट है. सोनेट एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें, एक ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइंस होती हैं, उसका एक पर्टिकुलर मीटर होता है, पर्टिकुलर रिदम कह लें आप जिसको. तो इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया हुआ है. दीज आर सर्टेन टेक्निकल थिंग्स. आई थिंक एट योर स्टेज दिस इज़ नॉट वर्थ मेंशनिंग. सो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट इट इज़ अ सोनेट. ये एक सोनेट है, 14 लाइन की पोएम है. और इसकी राइमिंग स्कीम आप देख लें. Land is actually rhyming with sand. So A is rhyming with C. Stone and frown. B is rhyming with D. So we would say that A, B, A, B. Command read. Things fed. Command में आ जाएंगे बेटा आपका C, read में D, things E, fed again D. ठीक है जी. अपीयर डेस्पेयर, ये फिर मिल रहे हैं आपके. किंग्स अगेन नहीं मिल रहा है किसी से भी. डिके अवे, ये फिर मिल रहा है. बेयर अगेन किससे मिल रहा है? अपीयर डेस्पेयर से. ठीक है जी. तो ये हो जाएगा जनाब आपका ई एफ जी. लेट्स अगेन गिव देम नंबर. ए बी सी डी ई C-D-E-D. अब नेक्स्ट स्टेंजा आप इसका देख लें. अपीयर को अगर आप ए लेते हैं तो ए बी, ठीक, ये नहीं मिल रहे हैं. अपीयर एंड एस्पेयर मिल रहा है. ए बी ए सी. फिर जनाब आपके पास है अगेन ए सी. ठीक है. So you need not to write the rhyming scheme, but what you need to know that what are the rhyming words and how do they rhyme. We have already done how to make rhyming schemes. So let's start the poem. I will be reading it line by line and explaining. Okay. So this is page number 72. You better open up your books and try to follow me. I met a traveler from an antique land. मैं एक ऐसे मुसाफिर से मिला जो बड़ा ही किसी एंटीक लैंड से आ रहा था, या वो वहाँ का मुसाफिर था. एंटीक मतलब बहुत पुरानी, यानी कि जिसकी बड़ी पुरानी सी तारीख़ हो. तो वो एक ऐसी जगह से या एक ऐसे खत्ते से ताल्लुक़ रखता था जो कि बहुत पुराना था. हु सेड, उसने मुझे कहा. क्या कहा देखें, राइटर कह रहे हैं उसने मुझे कहा. टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन. दो बहुत बड़ी टांगे, लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की उसने देखी है. और वो ट्रंकलेस है. ट्रंकलेस मतलब वो किसी स्टैचू की टांगे हैं जिसका ऊपरी हिस्सा, ट्रंक मतलब धड़, जो उसका ऊपरी हिस्सा है, जो टॉर्सो है उसका, ठीक है, वो कहीं टूट के पता नहीं कहाँ चला गया, या उन टांगों के ऊपर मौजूद नहीं है. और वो दो टांगे स्टैंड इन द डेजर्ट. और वो टांगे कहाँ खड़ी हैं? डेजर्ट में. नियर देम ऑन द स्टैंड. और उन्हीं टांगों के थोड़ा ही करीब रेत के ऊपर क्या पड़ा है? हाफ संक, आधा धंसा हुआ. आधा वो रेत में धंसा हुआ है. क्या धंसा हुआ है? आ शैटर्ड विसाज लाइज. विसाज कहते हैं बेटा चेहरे को, फेस. एक टूटा फूटा पत्थर का चेहरा भी है वहाँ पर, और वो आधा रेत में धंसा हुआ है और आधा जो है वो बाहर. whose frowned and wrinkled lips and a sneer of cold command. उस चेहरे को जब आप देखते हैं, then the emotions which are there on the face, on that visage, they are still alive and they are so vivid that it feels that the sculptor who made this sculpture was very much aware of the emotion of that person whose sculpture it is, and he made them alive in that very sculpture. ये जो स्कल्पचर, ये जो मुजस्मा जिसने भी बनाया है, उसने बारीक बारीक उसके फ्राउन्स बनाई हैं. उसके जो इमोशंस थे वो तक भी पत्थर में डाल दिए. किसके इमोशंस? जिस बंदे का ये मुजस्मा है. ठीक है, अभी हमें नहीं पता है किसका मुजस्मा है. लेट्स विल शॉर्टली गेट टू नो अबाउट इट. तो वो कहता है उसके अंदर क्या क्या, उसके चेहरे की तेवरियाँ, रिंकल्ड लिप्स, उसके जो लिप्स है उस पर छोटी छोटी झुर्रियाँ हैं. क्यों? जब आप गुस्से में होते हैं या बहुत आप रोक झाड़ने की कोशिश कर रहे होते तो, या कमांड दे रहे होते हैं, तो आपके माथे पे तेवरियाँ होती हैं और आपके होंठ जो थे वो सुकड़ जाते हैं, इसलिए रिंकल हो जाती है. एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड.
और एक स्नेयर है। स्नेयर कहते हैं बेटा जैसे आप इस्तेहज़ाइया आप मतलब किसी का मजाक उड़ा रहे हो, या आपके चेहरे पे एक मोकिंग किस्म की स्माइल हो, आप किसी और को कुछ नहीं समझते, एक बड़ी मगरूर स्माइल जो है वो आपके चेहरे पे हो। यहाँ पे मुराद है स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, जब आप बिल्कुल कोल्डली विदाउट एनी इमोशंस किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, तो आपके अंदर बड़ा जो तकब्बुर और गुरूर होता है। टेल दैट इट्स स्कल्प्ट वेल दोज पैशंस रेड, ये सब उसके चेहरे की जो सब छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि जो उसका स्कल्पचर था जिसने उसको बनाया है, जो वो मुजस्मा साज था, उसने इन तमाम पैशंस और इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया था, या वो बहुत अच्छे से उसे रीड कर सकता था, जब भी तो उसने इन पत्थरों में वो इमोशन जिंदा कर दिए, विच येट सर्वाइव स्टेम्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग। इतना खूबसूरत, इतना डिटेल उसने ये इमोशंस जो है उसके पोर्ट्रे किए हैं उसके मुजस्मे के, कि वो अभी तक हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इस मुजस्मे के चेहरे पर ज़िंदा है, मौजूद है। और ये स्टैम्प हो गए, छाप लग गई है इन इमोशंस की किसके चेहरे पर। लाइफलेस थिंग, पत्थर का चेहरा है, उसमें ज़िंदगी तो नहीं है लेकिन ज़िंदगी जैसे इमोशंस है, मतलब चेहरे को देख के लगता है कि जैसे कि अभी ज़िंदा चेहरा है, और इसके चेहरे और इसको गुस्सा आ रहा है, और ये अभी आपको डांटेगा या आपको कोई कमांड देगा, और बहुत ज़्यादा मतलब एक पावरफुल किस्म का एक्सप्रेशन जो है वो उसके चेहरे पे हमें नज़र आ रहा है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, वो कह रहा है ये वो चीज़ें हैं, ये वो इमोशंस हैं जिनको स्कल्पचर के हाथ ने मोक किया है। मोक मतलब मजाक उड़ाया। आप देखो उसने हर चीज़ जिंदा कर दी उसके पत्थर के विसाज में, पत्थर के स्कल्पचर में। और आज क्या कैफियत है, पत्थर का स्कल्पचर टूट के पड़ा हुआ है और वो बंदा पता नहीं कहाँ मौजूद है, बल्कि खप चुका होगा, उसको कुछ पता नहीं। एंड द हार्ट दैट फेड, और उसके दिल में ये तमाम जो तकब्बुर था, या जो तमाम ये वेन किस्म का एरोगेंस था, ये उसके हार्ट में पाया जाता था। उसने सब कुछ जिंदा कर दिया। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, पेडिस्टल कहते हैं बेटा चबूतरे को, जिस चबूतरे के ऊपर रखा जाता है मुजस्मा। जब भी कोई मुजस्मा बनाता है उसे किसी किस्म का एक पेडिस्टल, एक स्टैंड सा दिया जाता है जिस पे वो रखते हैं, और वहाँ पे ये लफ्ज़ लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे? माई नेम इज़ ओज़मंडियास, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ओज़मंडियास है, किंग ऑफ किंग्स, मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ। मतलब मैं इतना ताकतवर हूँ कि आई रूल द किंग्स, मैं तो बादशाहों पे हुकूमत करता हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स। और अगर किसी ने मेरा जाहो जलाल देखना है, किसी ने मेरी अजमत देखनी है, तो तुम मेरे कामों को देखो, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया में। ये माइटी एंड डेस्पेयर, मैं इतना माइटी और मेरे काम इतने ताकतवर अजीम काम है मेरे। आप देखें ना जो अहराम मिस्र है वो रमेसीस, ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं फ़िरौनों ने बनवाए थे। तो रमेसीस 2 ने जो है उसमें बड़ा उसका हाथ है। और जो मिस्री सिविलाइजेशन है, जो जनाब आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इट वाज वन ऑफ द यू कैन से एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम। बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन थी, और वहाँ के जो फरोराज होते थे, या जो वहाँ के जो फ़िरौन होते थे, वो बहुत ताकतवर किंग होते थे। और वहाँ पे स्लेवरी होती थी, लोगों से ज़बरदस्ती जो है ग़ुलामी करवाई जाती थी, और बहुत जुल्म जो होता है वो किया जाता है। और ज़ाहिर है आप जुल्म जब करते हैं जब आप माइटी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए आप हर एक को काबू में कर सकते हैं। तो वो कह रहा है मेरे काम देखो, ये माइटी, ये इतने माइटी एंड डेस्पेयर, और तुम क्या करो, तुम उदास हो जाओ, तुम मायूस हो जाओ कि तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डेस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। लेकिन अब राइटर देखें क्या कह रहा है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ नहीं रहता। आप कितने से कितना महान शख्स हो, आप कितने से कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ले लें, बहुत ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन, लेकिन कुछ ज़िंदा नहीं रहता। राउंड द डिके, राउंड द डिके मतलब राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक। कोलोसल कहते हैं बहुत बड़ा, मैग्नीट्यूड का, बहुत ज़्यादा मतलब उसका हुजूम होना किसी चीज़ का। रैक माने कचरा, टूट फूट जाना कोई चीज़, कबाड़। तो वो बोल रहा है इस डीके, और ये जो इतना कबाड़ पड़ा हुआ है, बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस मतलब ये दूर दूर तक कोई भी नहीं है,
और बेयर मतलब कोई ना परिंदा है, ना कोई इंसान है, ना जानवर है, और इस बाउंडलेस बेयर में ये कलोसल रैक पड़ा हुआ है, ये कचरा पड़ा हुआ है, कबाड़ पड़ा हुआ है। किसका? एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे किंग्स का जो अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता था, और उसके काम बहुत बड़े बड़े और आलीशान होते थे, लेकिन देखें नथिंग बिसाइड ज़मीन, कुछ भी नहीं रहा। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और कुछ भी नहीं है। लोन एंड लेवल सैंड, दूर दूर तक ताहते निगाह सिर्फ रेत ही रहते, और यही जो है वो इंसान का क्या है? एंड है। तो ज़िंदगी जो है वो बजाय ये कि लोगों पर रूल करके गुजारी जाए, लोगों पर हुकूमत की जाए, या लोगों को अपने, आप कह सकते हैं, अपने ताबे किया जाए, तो ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाए कि आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहें। जब आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं तो फिर आप नहीं मरते। लेकिन अगर आप लोगों को ज़बरदस्ती अपना, मतलब जैसे किंग्स होते हैं या जो रूलर्स होते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती अपना ग़ुलाम बनाते हैं, या ज़बरदस्ती उन पर अपनी पावर के थ्रू से उन पर राज करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता। क्या होता है? द लॉन एंड लेवन सैलनेस, वो मट्टी में मट्टी हो जाते हैं, और उनके इर्द गिर्द क्या है? सिर्फ मट्टी या डिकेज होता है, वो उनका मुकद्दर होता है। So this was Ozymandias. We will continue tomorrow with the exercise. Thank you very much. Until then, take care.